This chapter, Diversity in Living World, in class 9, do not have much content, but regarding as far as concerned for the Homi Baba exam, it is very, very important. Good questions are from this chapter. So basically here we have a term that is diversity. Yes. What do you mean by diversity? Can you explain? So diversity, sir, I think it is the different types of animals or the organisms in our surroundings. Basically, the term you have explained, that is much more better, okay? But the diversity term is basically, we can say these are the number of organisms and type of organisms which are existing in the universe. I'm not saying only in Mumbai or only in Nehru. But my point, it is the Yes. total number and type of organism in simple terms. We can also explain in another statement, but this is the simple manner. It is the number and type of organism that are present in our surrounding, in the environment, in the world, in India, in whole universe. That is the diversity. On an approx, there are 30 million species are existing. How much? It is 30 million. Can you imagine what about 30 million? Basically, it is 30 lakh, 300 lakh. It means 3 crore species are existing. Yes, sir. Basically, these are type of species. We are not counting entire organism. जैसे नो कि अगर मैंने ह्यूमंस का काउंट किया तो ह्यूमंस का सारा नंबर मिला करके इसमें काउंट हो रहा है. तो ह्यूमन इन 30 मिलियन में से एक सिर्फ क्या है? ह्यूमन है. क्लियर? इन 30 मिलियन में से एक ह्यूमन है, बाकी अदर स्पेसीज हैं. Yes. लेकिन एक खास बात क्या है, ये जो 30 मिलियन स्पेसीज है आपके पास, इनमें से टिल नाउ वी आर ओनली गेटिंग 1.7 to 1.8 million species. Rest are do not known, but they are existing. This is the 30 million is the estimate value. In your module, there is a value from 5 to 30 million species are existing. Do you have got the module? Yes, sir. Volume 2. Yes, sir. Okay. So from there, it is from 5 to 30 million species are existing. Clear? But what I said, whatever the scientists study about the surrounding or whatever the environment, the universe, according to their study, according to their data, we have 30 million species. They are existing in the whole universe. I am saying in the whole universe. But out of this, we only know about 1.7 to 1.8 million species. These are known and described, and all these means 1.7 का मतलब क्या होगा? 17 लाख. Clear? 17 से 18 लाख organisms are described till now. Clear? Out of which some are plants, some are animals. इनमें से मैक्सिमम क्या है आपके पास? एनिमल्स हैं, फिर कुछ मतलब हाफ से ज्यादा एनिमल्स है, फिर कुछ आपके पास प्लांट है, बाकी कुछ माइक्रोब्स वगैरह. जैसे हम लोग एनिमल्स अगर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, जैसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम लोग इसको जब हम लोग किंगडम की बात करेंगे तो आपको मैं याद करने का तरीका बताऊंगा. इन शॉर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एम, देन वी हैव पी, देन वी हैव एफ, देन वी हैव पी, at last we have a. In short, we can say in mnemonics, we can say MP is the father of PA. PA for personal assistant, MP is a member of parliament. Yes. तो याद रखने के लिए हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि MP is the father of PA. What about M? M for Monera. All these are the Monera. All the Monerans are microscopic. Clear? Yes, sir. All the Monerans are microscopic. Okay. In next we have Protista. In next we have fungi. Clear? At last, in second last, this is plant kingdom. That we call them plantae. And at last A for animal kingdom, that we call them Animalia. Clear? Yes or no? Yes, sir. So basically this term diversity refers to these kind of things.
So what do you mean by diversity? Basically, these are number and type of organisms which are existing in the whole universe. In another way, we can say basically these are the difference, or the diversity was basically what? It is the difference between the organism in their number, in shape, in size, color, nutrition, behavior. Clear? This is basically diversity means. Do you have any doubt till now? No, sir. Do you have written this? No, sir. I have not written this. Do it fast. So again, I am explaining this. So till now, we have 1.7 to 1.8 million species. These are known. These are described. Described का मतलब these are already named. जैसे अगर बात करें ह्यूमंस का नाम है, तो ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? Homo sapiens. हाँ, होमो सेपियंस. मैंगो का नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका. पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम. बेसिकली डाइवर्सिटी आपको जो 9th में दे रखा है ना, तो दिस ये जो 9th का चीज है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल फील्ड और इन बायोलॉजी, you will get in 11. The first 4th chapter belongs to this diversity in living world. The first chapter will be living world, second is biological classification, third one is plant kingdom, fourth one is animal kingdom, and rest chapters are based on these 4 chapters. Is it clear? So Yes, moving sir. to next. In other way, you can also define diversity as difference in number, or we can say appearance of living organism in terms of shape, size, color, nutrition, behavior. क्लियर है? न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप का होता है. ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, उसमें भी डिफरेंट होता है. कीमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है. और हेटेरो में भी अलग अलग टाइप का होता है. पैरासाइट होता है, होलोजोइक होता है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास अवेलेबल है, जो अब तक आप. हाँ बेटा. Saprotrophic. हाँ, मतलब कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपने क्लास 9th में तो नहीं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा. क्लियर? Yes, sir. हाँ. Basically, we are studying biology. In biology, basically जो diversity term है, तो बायोलॉजी हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं? बायोलॉजी हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? बायोलॉजी क्या है? बेसिकली बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. वो पार्ट ऑफ साइंस जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें वी हैव डिफरेंट अपीयरेंस होती है, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती है. एंड बायोलॉजी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि बेसिकली बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. कि किस तरीके से इस अर्थ में, इस जमीन पे, इस यूनिवर्स पे किस तरीके से इस प्लैनेट पे कैसे ऑर्गेन्स एग्जिस्टिंग हो रहे हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होती है. क्लियर है? Yes, sir. इनिशियल टाइम जो पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे, जो या साइंटिस्ट वगैरह होते थे, या जो हिप्पोक्रेट्स हुआ करते थे, वो सिंपली ऑन द अपने नॉलेज के हिसाब से, अगर मान लो कोई चीज आप पढ़ाई करते हो या फिर कोई भी चीज आपको समझने की कोशिश करते हो, तो आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको समझना चाहोगे, डिफरेंशिएट करना चाहोगे. जो अपने पूर्वज थे, अपने जो प्रीवियस जनरेशन के लोग थे, वो भी अपने नॉलेज के हिसाब से जो लिविंग है और नॉन लिविंग है दोनों को डिफरेंशिएट करना जानते थे. लेकिन दे आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओन यूज, मींस वो सिर्फ ह्यूमंस के बारे में जानना चाहते थे. तो ह्यूमंस के बारे में जानने की वजह, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में जानने की वजह से उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो उनका एप्लीकेशन था, वो लिमिटेड रह गई. अगर वो सबको लेके चलता कि अदर ऑर्गन के बारे में स्टडी करता इंस्टेड ऑफ सिर्फ ह्यूमंस के बारे में, तो उनको कामयाबी ज्यादा मिलती. जैसे आज के जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन्स को लेके स्टडी करते हैं, बाद में वो स्पेसिफाई करता है. क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत है? हाँ, यहाँ पर एक टर्म है आपके पास, लिविंग वर्ल्ड. क्या टर्म है? Living world. Living world means basically, can we say it is living organism? Yes. Yes, sir. How can you define that a particular thing is a living or non-living? Yes, tell me. Yes, sir. Sir, it has some properties like it. Sir, it does respiration As and respiration, okay. it does reproduction and Okay. sir, Okay. No, not an issue.
हाँ बेसिकली अगर हम लोग लिविंग और जो आपने देखा वो ठीक है फीचर्स है, पर हम उस चीज को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको कैसे यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, आज हम लोग बात करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ ना कुछ इसका फीचर्स तो होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग अ मोबाइल, इट हैज ऑल्सो फीचर्स, जिनका अच्छा फीचर होगा आप उनको प्रीफर करते हो एज कम्पेयर टू द जिनके पास लेस फीचर्स होती है। जैसे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके पास एक फीचर्स होती है ग्रोथ, यू हैव हर्ड दिस नेम। Yes, sir. नेक्स्ट आपका होता है रिप्रोडक्शन, यू हैव हर्ड दिस वर्ड। Yes, sir. इन नेक्स्ट वी हैव मेटाबॉलिज्म, यू हैव हर्ड दिस। Yes, sir. इन नेक्स्ट वी हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आई सेड, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। And at last we have consciousness. Yes, what I said, consciousness. So basically these are the features of living organisms. But can we define कि कोई एक आपके पास living है, एक तरफ आपके पास living है, दूसरी तरफ आपके पास living versus non living में, क्या हम लोग ऐसा उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कैसे किसी चीज को आप लिविंग कह सकते हो, कैसे किसी को आप नॉन लिविंग कह सकते हो। देखो मैं कुछ चीजों को मैं कट कर रहा हूँ और इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, ऐसा क्यों। सर क्या करना है मुझे अभी? आपको ये बताना है कि जो मैंने दोनों टर्म को ऊपर को कट क्रॉस किया है, क्रॉस क्यों किया, इसका मतलब ये डिफाइनिंग फीचर्स में नहीं होगा। देखो फीचर्स तो है, देखो फीचर्स अलग चीज है, डिफाइनिंग फीचर्स अलग चीज है। तो डिफाइनिंग फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग चीज है, डिफाइनिंग फीचर्स अलग चीज है। डिफाइनिंग फीचर्स उन फीचर्स को बोलते हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में अप्लाई हो, तुम पे हो, मुझ पे हो, आप पे हो, आपके घर वाले पे हो, एनिमल पे हो, प्लांट पे हो, माइक्रो, सब पे अप्लाई हो। The character or the properties that are applicable to all organisms in the universe without any exception, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जिनके पास डिफाइन करने के वो सारी तीन की नीचे वाले तीन प्रॉपर्टीज पाया जाए उसी को हम लोग लिविंग बोलेंगे। बाकी सबके सब जिनके पास नहीं हो, एक भी कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। कैसे समझते हैं? यस सर। एज यू हैव लर्न दैट, आपने सेल में पढ़ा होगा, टिश्यू में पढ़ा होगा, 9th में है आपके पास, यस। हाँ सर। तो उसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ जो आपके पास सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, या एनिमल, देखो अगर एनिमल्स की बात करें और प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स में क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ओके, मतलब टिल देयर लाइफ, टिल देयर डेथ, उनमें ग्रोथ होती रहती है। आप किसी भी प्लांट में अगर एनालाइज करोगे, आप जब से आपकी पैदाइश हुई तब से लेकर अपने आखिरी वक्त तक, अपने आखिरी सांस तक अगर देखोगे, तो प्लांट में कहीं ना कभी नए नए पत्ते आते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है। क्लियर? वहीं पर एनिमल्स में देखोगे तो क्या एनिमल्स में कुछ इस तरीके का ग्रोथ वाले फीचर्स दिखते हैं? हाँ सर। एक दिखता है, हाँ या ना? सर कहाँ मतलब एनिमल्स में कोई आपको ऐसा फीचर्स दिखता है जो प्लांट में दिखता है? प्लांट में तो हमेशा नया नया पत्ता आता रहता है, साल में एक बार दो बार जो सिस्टम है वैसा होता रहता है। क्या एनिमल्स में ऐसा होता है कि एक बार स्किन निकल गया, सारे बाल उड़ गए, नया बाल आ रहे हैं, एक कान कट गया दूसरा कान आ गया, ऐसा होता है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? देखो इसलिए हम लोग बोलते हैं एनिमल्स के पास लिमिटेड ग्रोथ होती है। एक सर्टेन एज तक, सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी तक उसमें ग्रोथ अच्छे से होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग होगी। जो टिश्यू है, सेल्स वगैरह डैमेज हो जाएगा, उनको सिर्फ रिपेयर करेगा। क्लियर? यस सर। उनको सिर्फ और क्या करेगा, रिपेयर करेगा। तो ये मालूम चलता है कि जो आपके पास एनिमल है, इनके पास एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। उसके बाद कोई ग्रोथ होती नहीं है। अरे ग्रोथ होना होता तो हार्ट की साइज बढ़ करके आपकी बॉडी से बाहर आ जाती, ऐसा होता है? नहीं सर। आपके जो हैंड्स वगैरह हैं, या जो आपकी लिम्स वगैरह हैं, जो आपकी डिजिट्स, उंगलियां वगैरह है, इन सब में भी ग्रोथ होती है।
क्या ऐसा होता है एक पार्टिकुलर एज के बाद इन सब में ग्रोथ होती है क्या? नहीं सर। नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है, प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। हाँ। दूसरी बात, ठीक है, लिविंग में पाई जाती है। माउंटेन्स भी ग्रो करता है, देखा है? अरे माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है ना, हाँ। लावा वगैरह फूटता है और माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। हम्म, तो क्या आप बोलोगे ये लिविंग है? नहीं सर। लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता। सर बाकी क्योंकि और चीज, फाइनिंग हाँ, फीचर नहीं है। डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। क्यों हम हाँ। लोग क्रॉस किया, क्यों किया वो हम लोग समझ रहे हैं ना, क्यों क्यों नहीं है? क्यों बाकी और सारे फीचर्स इनके पास नहीं पाया जाता। क्या कभी आपने देखा है कि एक पहाड़ से दो पहाड़ हो जाए? नहीं ना, कि दो मम्मी पापा के पहाड़, दो पहाड़ है, एक इधर माउंटेन M1 हो गया, इधर माउंटेन M2 हो गया, ये आपके पास हो गया पापा, ये हो गया मम्मा, इनसे एक बच्चा कोई हो गया। ऐसा नहीं होता ना, नहीं मतलब सर। ऐसा नहीं होता। तो वैसे रिप्रोडक्शन पे डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो मालूम चला कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में पाई जाती है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी पाई जाती है। इसलिए हम लोग ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर्स नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं किसके पास, रिप्रोडक्शन के पास। हाँ। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में होता है? नहीं होता सर। है। हाँ सर। आपने, हाँ बोलो। सर मतलब सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना। सारे में हाँ होता है। हाँ सर होता है। आपने ह्यूमन इनफर्टाइल कपल का नाम सुना है? ह्यूमन इनफर्टाइल, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, हाँ सर। सुना है? पर वो क्या लिविंग है नॉन लिविंग है? सर मतलब मुझे सर नहीं पता उसके बारे में ज्यादा। ऐसे पता नहीं, कोई नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ मेल फीमेल ऐसे होते हैं जिनके पास गैमेट्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाती है ड्यू टू सर्टेन अंडरलाइंग कंडीशन। गैमेट्स क्या होता है, जिनसे जिनकी फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट से इम्ब्राया बनता है, और इम्ब्राया से फीटस बनता है, और फीटस से बच्चा बनता है। क्लियर? तो कुछ मेल फीमेल ऐसा होता है ह्यूमंस में या एनिमल्स में जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, लेकिन लिविंग तो है ना, लिविंग तो है। मैंने क्या बोला था, वो प्रॉपर्टी जो सारे जो एप्लीकेबल हो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में विदाउट एनी एक्सेप्शन। अरे रिप्रोडक्शन तो एक्सेप्शन हो गया, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्यों ले, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करने में, लेने में, डिफरेंशिएट करने में जिसका एक्सेप्शन आ रहा हो। हम्म। हम्म। समझ में आई? हाँ सर। आपने नाम सुना होगा म्यूल्स के बारे में? तो किसके बारे में? म्यूल्स, म्यूल्स। नहीं सर। आपने नाम सुना होगा हिनी। ये डोंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। यस। हाँ सर। नाम, म्यूल्स का नाम नहीं सुना है? गधे का नाम सुना है? हाँ सर। गधा, डोंकी, हॉर्स, हाँ। पोनी का नाम सुना है? हाँ। तो उन्हीं के एक स्पेशीज है, उन्हीं का एक स्पेशीज है। देखो सिंपली होता क्या है, सिंपली ये होता है, देखो अगर आपके पास हॉर्स है तो मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स मिलेगा, तो उसका बच्चा हॉर्स होएगा। अरे ह्यूमन तो नहीं हो पाएगा ना। डोंकी मेल डोंकी फीमेल में मेटिंग होगी, मीन्स रिप्रोडक्शन होगा, तो बच्चा जो होगा वो डोंकी होगा। यस और हाँ। नो? इधर यस सर। वाले को मान लो मेल, इधर वाले को मान लो फीमेल, इधर वाले को मान लो मेल, इधर वाले को मान लो फीमेल। ये नेचुरली ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ये आपस में ऐसा होता है कि इसका मेल फीमेल, इसका मेल फीमेल में अगर मेटिंग हो जाए, तो इनसे भी ये ओनली एक्सेप्शनल केस है जहां पर ऐसा होता है। बाकी कुत्ते, कैट और डॉग की मेटिंग नहीं होती। लेकिन आपने ऐसा मालूम, जब आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, मेल हॉर्स, फीमेल डोंकी, इनमें मेटिंग होती है और इनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन वो फर्टाइल नहीं होते, स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब क्या, कि होती है अनेबल टू प्रोड्यूस गैमीट, मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसको बोलते हैं इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल मतलब क्या होती है? सर अभी आपने इनफर्टाइल क्या के, क्या रिपीट कर? मैंने बोला कि
हॉर्स और डोंकी में दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल केस जहां पर ये अलग अलग, हॉर्स अलग स्पीशीज है, डोंकी अलग स्पीशीज है। तो इन दिस इज द ओनली केस स्पीशीज, these two species are the only species जहां पर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन तक इंटर स्पेसिफिक मेटिंग होती है, मींस रिप्रोडक्शन होता है, जिनसे बच्चा भी होता है, लेकिन वो बच्चा क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। क्या होता है? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या? अनेबल टू प्रोड्यूस, अनेबल टू प्रोड्यूस, ये लिखना नहीं है, गैमीट। मतलब जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो ऑफस्प्रिंग ही नहीं होगा। हम लोग कैसे हो गए? वी हैव फॉर्म फ्रॉम अ स्पर्म एंड ओवम ना। हाँ सर। ठीक है ना, मम्मा से क्या आया, ओवम मिला, और पापा से क्या आया, स्पर्म आया, दोनों मिल गई तो हम क्या ह्यूमंस बनते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है इनमें ऐसा सिस्टम होता है। क्लियर है? और जो हॉर्स और डोंकी के बीच में मेटिंग करने से बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, दैट विल बी स्टेराइल। मतलब इसको हम लोग स्टेराइल भी बोलते हैं। व्हाट आई सेड? स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल। क्लियर है? यस सर। लेकिन वो क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं। तो इसका एक्सेप्शन तो हो गया ना यार, कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। हाँ सर। इसका मतलब इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? यस सर। इनमें से एक म्यूल बनता है, इसमें से एक हिनी बनता है। क्लियर है? हॉर्स और डोंकी के कॉम्बिनेशन से कोई दिक्कत है? नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? आगे बढ़ो क्या? सर अच्छे से नहीं पता। फिर भी क्या होता है? सर हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होता है उसमें। ओके गुड। मीन्स whatever the reaction occurring inside the living organism, इसके लिए हम लोग एक बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? और इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट टूटते हैं, और इसी की वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है। जो हम व्हाटएवर द फूड वी आर ईटिंग, इनकी वजह से बॉडी में रिएक्शन होती है, उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से अपने बॉडी अलग अलग जगह में बॉडी में प्रोटीन बनती है, मास का एक्यूमुलेशन होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, बड़े होते हैं, लेंथ में इंक्रीमेंट होती है। अरे हाँ, हाँ की ना? हाँ सर। ये हो गया वो सारे के सारे रिएक्शन जो कि अपने बॉडी में होती है। अच्छा, आप किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर पूछोगे या आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो देयर विल बी अ रिएक्शन इनसाइड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे आप वायरस को, वायरस को कर करके, वायरस नहीं तो लिविंग है, नहीं तो वो नॉन लिविंग है, वो बीच में है। जब वो होस्ट के अंदर होगा तो लिविंग होगा, जब वो होस्ट के बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा। जब वो होस्ट के अंदर होगा तो लिविंग होगा, जब होस्ट के बाहर होगा तो वो नॉन लिविंग होगा। क्लियर है? और इसलिए वायरस को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वायरस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? यस सर। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ। अगला है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। आपने भी सेल के बारे में पढ़ा होगा ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट है। हाँ। इससे छोटा तो होता है लेकिन उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम्म। समझ में आ रहा है? आधा सेल एग्जिस्ट नहीं करती। और एक कंप्लीट सेल होने का मतलब, एक कंप्लीट सेल होने का मतलब उसके पास न्यूक्लियस होगा, यस, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, बाकी सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह भी होगा। क्लियर है? हाँ। तो इसी तरीके से जो आपके पास ये सेल है, एक तो हमने बताया कि फंडामेंटल क्या होती है, मतलब बेसिक है, इसके नीचे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, चाहे तो एक सेल का होगा, दो सेल का होगा, या हम लोग मल्टी सेल बोल सकते हैं। तो बोलो ना, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगर आप किसी भी यूनिसेलुलर के पास जाओगे ना, मतलब एक सेल का, मतलब सेल क्या है, जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। चाहे आप प्रोकैरियोट के पास जाओ या यूकैरियोट के पास जाओ, उन सब के पास एक प्रॉपर सेल का सेट होता है,
एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसका सेल की बाउंड्री हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये कुछ सेल ऑर्गेन्स वगैरह हो गया। हाँ अगर सर। प्लांट सेल है तो सेल वाल भी होगा, एनिमल सेल है तो सेल वाल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, भले वो कितना ही माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, लेकिन उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है और फंक्शन भी करता है, अपना सारे अपने जरूरत की सारी चीजें परफॉर्म करता है। अरे यूनिसेलुलर के पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होती है ना, होती है, नहीं सर। लेकिन फिर भी उसका वो एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके पास क्या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइएगा। अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, और बताइए, यूग्लिन आएगा। यूनिसेलुलर में। हाँ यूनिसेलुलर में। हाँ सर। हाँ ये सारे कैसे अरे एग्जिस्ट तो करते हैं ना, एग्जिस्टेंस तो इनकी है। हाँ इसका मतलब द सेल है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। अगर माउंटेन से जाके पूछोगे तो नहीं तो उनके पास मेटाबॉलिज्म होती है, नहीं तो उनके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर? यस सर। ये था दूसरा फैक्टर जो कि लिविंग को नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करता है। अगला है आपके पास कॉन्शियसनेस। क्या होता है अगला? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस क्या होती है? कैन यू एक्सप्लेन? सर वो सर उसका मतलब पता है पर एक्सप्लेन कैसे करूँ फिर? अच्छा अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इसी बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that interact with their surrounding or with their environment and respond to them. हाँ हाँ। That is the consciousness. अरे जब पूछोगे ना तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अपना अपने हार्श कंडीशन से बचाव चाहता है। हाँ जैसे आपने टचमी नोट का नाम सुना होगा, मिमोसा पेड्यूका नाम सुना है? टचमी नोट छुई हुई बोलते, जिसे टच करने से वो मुरझा जाता है। वो क्या है, उसका क्या है, एक स्टिमुलस है। मतलब उनके टच करने से या इन्वायरमेंट के किसी फैक्टर से उनका वो रिस्पॉन्स शो करने लगे, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सर बस सारे प्लांट का तो कॉन्शियसनेस नहीं होता है ना? सब में होता है। सर कैसे मतलब? अच्छा आप ये कह रहे हो कि सारे प्लांट नहीं नहीं मुरझाते हैं, विल्ट नहीं करते, ये कहना चाह रहे हो? हाँ सर। अच्छा। कभी आपने प्लांट में अगर आप जो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो फार्मिंग में हम लोग देखते हैं, जब कभी बहुत ज्यादा धूप होने लगती है, व्हाट आई सेड, जब बहुत ज्यादा धूप होने लगती है, अगर धूप ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा ना, हाँ हाँ सर। पानी का लॉस ज्यादा होगा। तो पानी का लॉस होना अच्छी बात है, नुकसान की बात है? नुकसान। तो वो पत्ते मुरझा जाते हैं, विल्ट कर जाते हैं। हाँ। स्टोमेटा कब ओपन होता है? जब वो कंप्लीटली स्ट्रेच्ड होती है। हम्म। जब लीफ कंप्लीटली फ्लैट और स्ट्रेच होगी तभी तो स्टोमेटा ओपन होगा। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो पानी सारा का सारा निकल जाएगा और प्लांट के लिए पानी की कमी हो जाएगी। तो कमी ना हो, वो पत्ते क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं। उसके लिए भी एक अंदर मैकेनिज्म होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह। हाँ समझ में आ रही है? तो हाँ पानी का सर। लॉस बच जाएगा। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, ठंड के मौसम में प्लांट्स में, फार्मिंग फील्ड में बीमारियां आने लगती है। क्लियर है? अरे कुछ अटैक करता है तभी तो वो रिस्पॉन्स शो करता है। कभी कभी वो प्लांट उस बीमारी से रिकवर कर पाता है। अगर रिस्पॉन्स शो नहीं करता तो वो बच ही नहीं पाता। जैसे ह्यूमन की बात करें, आपको क्या लगता है कि हम जो जिस एनवायरनमेंट पे रहते हैं वहां पर माइक्रोब्स नहीं है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है? सर अरे है। हर जगह है ना। लेकिन अब क्या हर दिन बीमार पड़ते हैं? नो, बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि अपने बॉडी में कुछ ना कुछ सिस्टम है, दैट इज द इम्यून सिस्टम, जो आपके बॉडी में रह करके आपके बॉडी में एंटर करने वाले हर एक पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से काउंटर अटैक करता है। यस, यस इस सर। वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं।
कभी कभार क्या होता है अपनी सिस्टम कमजोर पड़ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें नजला होने लगता है, फीवर होने लगता है, बॉडी में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी वॉमिटिंग होती है, कभी कभी इंडाइजेशन होता है। यही तो स्टिमुलस है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे और रिस्पॉन्स शो करे, दैट इज द कॉन्शियसनेस। यस सर। पहाड़ को जाके जाके पूछोगे तो क्या वो उसको कितना भी मार दो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नो सर। नहीं फर्क पड़ेगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपने इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स शो करता है, दैट इज बेसिकली कॉन्शियसनेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, टू यू? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ। सो अगर हम लोग आगे बढ़े तो इसलिए आपके पास ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक पॉइंट लिखना, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, व्हाट आई सेड, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, these are basically self replicating। क्लियर है? बताओ। रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कॉपी करना, अपना नंबर बढ़ाता है, अपना कॉपी करता है। क्लियर? हाँ सर। सेल्फ इवॉल्विंग मतलब इवॉल्व भी होते हैं, यस, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग। कोई दिक्कत बताओ? नो सर। तो अपने उस इंटीग्रेटिव सिस्टम में यह आपस में क्या मिलके क्या करता है, अपने जेनेटिक मटेरियल कॉपी भी करता है, अपने आप इवॉल्व भी होता है। पहले आपके पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म था, अब हाईली एडवांस ऑर्गेनिज्म है, एंड ह्यूमंस आर द मोस्ट सुपीरियर ऑर्गेनिज्म, यस और नो? यस सर। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग भी। अगर रेगुलेटिंग नहीं होती तो देन हाउ वी कैन सस्टेन आवर लाइफ? इसी सेल्फ रेगुलेटिंग की वजह से ही क्या हमें किसी एक्सटर्नल मशीन की तो जरूरत नहीं पड़ती ना, तो बेसिकली वी आर सेल्फ रेगुलेटिंग। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है? यस सर। इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी? एडेप्टेशन। नाम सुना है? हाँ सर। एंड होम्योस्टेसिस, ये भी तो नाम सुना होगा आपने। एडेप्टेशन सुना है सर, होम्योस्टैसिस वन नहीं। सेकेंड, दोबारा बोलिएगा। सर एडेप्टेशन सुना है, होम्योस्टैसिस नहीं सुना है। ओके, आई एम एक्सप्लेन यू। एडेप्टेशन बेसिकली क्या है कि अलग अलग एनवायरनमेंट में जब कभी भी जाते हैं तो हमें, अब हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो दैट ऑर्गेनिज्म हैव टू अडेप्ट दैट एनवायरनमेंट ना, ताकि वो सरवाइव कर सके। अगर हम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप प्रॉपर मुंबई के हो, सर कहाँ? आप प्रॉपर यहीं के हो, नहीं सर। यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी है जो कि प्रॉपर यहीं का रेसिडेंस है, अगर उसको मैं दिल्ली भेज दूं, अगर मैं उसे कश्मीर भेज दूं, तो सोच क्या होगा उसका? अरे कश्मीर में ठंड बहुत होती है ना, हम्म। और जगह जहाँ जो कोल्ड रीजन है वहां भेज दूं, तो सोच क्या होगा उसका? मतलब उसको टाइम लगेगा एडेप्ट करने में, मतलब अपने आप को उस एनवायरनमेंट ढालने में कि हाँ भाई ठंड होती है तो हमें उसको उस तरीके से हमें रहना पड़ेगा, तभी वो एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज बीमार हो जाएगा वो, फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? बेसिकली दिस इज एडेप्टेशन। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करना, लाइक पीएच ऑफ द बॉडी, सॉल्ट बैलेंस ऑफ द बॉडी, वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। इन सब चीज को मेंटेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन। एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक आपको बॉडी के अंदर का एनवायरमेंट है। इसी चीज को मेंटेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। यस और नो? व्हाट आई सेड, इट इज होम्योस्टेसिस। मतलब बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन करने क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। क्लियर?
Yes, sir. These are very important characters of living organism. Yes or no? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. पढ़ने में मजा आ रहा है? Yes, sir. Done it? एक काम करते हैं ना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूं, चलेगा? हाँ सर। टाइम कम आपके पास ना, फिर इसके में वो नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ लिविंग की प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। इसके बारे में टैक्सोनॉमी के, इसका नाम सुना है कभी आपने? हाँ सर। क्या होती है टैक्सोनॉमी? सर ये क्या बोल रहा है सर, ये एनिमल्स को कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इनटू जीनस स्पीसीज को क्लासिफाई करना, उसे टैक्सोनॉमी में। हाँ, क्लासिफाई करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ, बेसिकली यहाँ पर दो टर्म है, टैक्सो और नॉमी। टैक्सो और नॉमी। टैक्सो वर्ड आया है टैक्सिस से। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, टैक्सो वर्ड आया टैक्सिस से, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। नोमी वर्ड आया नोमो से, इसका मतलब होता है लॉज। कुछ लॉज हैं, ऐसी प्लांट्स के लिए अलग है, एनिमल्स के लिए अलग है, माइक्रोब्स के लिए अलग है, बैक्टीरिया के लिए अलग है। हर ऑर्गेनिज्म, हर सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग लॉज हैं। वायरस के लिए अलग है। तो उन सर्टेन लॉज के हिसाब फॉलो करते हुए ऑर्गेनिज्म को सर्टेन कन्वीनियंट कैटेगरीज में पुट करने की प्रोसेस को, ग्रुपिंग करने की ही प्रोसेस को, दैट वी कॉल देम टैक्सोनॉमी। क्लियर? अरे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। यस सर। टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जो आपने बोला वो भी ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। हाँ, और इस टैक्सोनॉमी का जब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग टैक्सोनॉमी के मतलब, इससे एक्चुअल में मतलब क्या है कि जो भी आपके पास अननोन स्पीशीज है, इनके बारे में स्टडी करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं और इसका नेमिंग करते हैं। अरे यही तो है टैक्सोनॉमी। अरे बात समझ में आई क्या? अगर पूछा जाए कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, तो बेसिकली मतलब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि प्रैक्टिकली एक्चुअली हम लोग करते हैं क्या टैक्सोनॉमी में? अरे जो भी स्पीशीज अननोन है उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करते हैं, ताकि उसको अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग यूज कर सकें और उसका नेमिंग कर सकते हैं। इसी का नाम क्या है? टैक्सोनॉमी है। कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। यस? हाँ, नो सर। तो मैंने बोला टू identify unknown species। कोई दिक्कत? नो सर। आप सिर्फ नो सर बोल रहे, समझ में आ रहा है कि सिर्फ बोलने टाइम पास हो रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। पक्का? हाँ सर। एग्जाम में संभाल लोगे? हाँ सर। ये जो टर्म है ना, दिस टर्म वाज गिवन बाय APD कैंडोले। याद रहेगा? मैं लिखा रहा हूँ, ये जो टैक्सोनॉमी वर्ड है, टर्म वाज proposed by APD कैंडोले। क्लियर है? ये साइंटिस्ट है जिसने टैक्सोनॉमी का कांसेप्ट दिया था और ये टर्म दिया था। क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ? नो नो सर। इस टैक्सोनॉमी को जानने के लिए, व्हाट इज इट, टू नो दिस टैक्सोनॉमी, हम लोग तीन चीज पे जाते हैं। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। सर ये लिखना है कि मुझे, कि आप भेज दोगे PDF? आई विल सेंड यू द PDF। ओके,
ओके सर। तो टैक्सोनॉमी को जानने के लिए हम लोग इन टैक्सोनॉमी में 3 चीज की बात करते हैं। क्या क्या बात करते हैं? इन शॉर्ट, आपने नाम सुना है आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म? नहीं पता। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम सुना है? हाँ सर। अरे सिविक्स में पढ़ा होगा ना आपने, हाँ सर। सिविक्स सिविक्स। पर यहाँ हाँ पर याद रखने के लिए सिर्फ आईएनसी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज इट? आइडेंटिफिकेशन। एन फॉर नोमेनक्लेचर। जो हमने अभी टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन लिखा, क्या उसके हिसाब से कुछ आपको समझ में आ रहा है? नोमेनक्लेचर। सर, वो डेफिनेशन क्या समझ में आ रहा है? आपने क्या पूछा? जो भी हम लोगों ने टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया, हाँ उनके हिसाब से क्या आपको ये टर्म कुछ उसे लिंक लग रहा है? हाँ सर। सर टैक्सोनॉमी का मतलब उसमें क्या? हम किसी अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं। हाँ सर। मतलब उनका जात पात पड़ताल खानदान पानदान सब कुछ जान लेते हैं। हाँ। टैक्सोनॉमी का सिंपल अल्फाज में यही मतलब है। हम्म। ठीक है ना? मतलब उसका पूरा जांच पड़ताल करते हैं। सी मतलब स्टिंग। अभी अब सी का बाकी है। C4 है क्लासिफिकेशन। क्लियर है? तो इन टैक्सोनॉमी में हम लोग इन 3 चीज के बारे में बात करते हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। जब आप क्लास 11 में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको एक टर्म और जोड़ना पड़ेगा, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। क्या होगा? कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन। वो इन तीनों से पहले आएगा, लेकिन यहाँ पर उसकी आपको जरूरत नहीं। ठीक हाँ है? हाँ सर। अगर आगे बायोलॉजी लेंगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे पढ़ेंगे आप। लेकिन इतना जानना जरूरी है कि आपके पास टैक्सोनॉमी में हम लोग इन 3 चीज को डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं पहले उसको, फिर उसका नेमिंग रखते हैं, फिर उसको किस ग्रुप में जाएगा, ये प्लांट है, ये एनिमल है, या कोई माइक्रोब है, या कोई फंजाई है, कोई प्रोटिस्टा है, या कोई मोनेरा है। तो उनके कैरेक्टर के बेस पे उनको अपने रिस्पेक्टिव या कन्वीनियंट कैटेगरीज में पुट करते हैं। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। हाँ, एक होता है सिस्टमेटिक्स। एक क्या होता है? सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक एक टर्म है, एक साइंटिस्ट जो कि लीनियस नाम है उसका, इसने इस टर्म को दिया था। सिस्टमेटिक्स का मतलब यह होता है कि ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर के हिसाब से किसी कन्वीनियंट कैटेगरीज में अरेंजमेंट करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बात करेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है? बोलो। कैरोलस। कैरोलस लीनियस। इन लीनियस। शॉर्ट हम लोग को बोलते हैं लीनियस। क्या हाँ। बोलते हैं? तो लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। लेकिन इनको शॉर्ट में हम लोग लिन बोलते हैं। हाँ आपका भी घर में कुछ ना कुछ प्यार से नाम लिया जाता होगा, तो ऐसे हाँ इनको हम लोग इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? लिन बोलते हैं। लिन हाँ। फॉर लीनियस। कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। ठीक है? हाँ, आप इसका थोड़ा डेफिनेशन लिख लो। किसका? टैक्सोनॉमी का। वैसे आपको टैक्सोनॉमी का समझ में आ गया, लेकिन डेफिनेशन लिख लो, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है ना? हाँ सर। सर मैं हाँ, अभी लिखूं? नहीं नहीं, मतलब समझना है बेसिकली। हाँ मैंने क्या बोला कि जो भी आपके पास अननोन, एक तो मैंने ये आपका ये वाला डेफिनेशन लिखा है कि टू आइडेंटिफाई अननोन स्पेसीज। क्लियर है? ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है, पर और भी एक अच्छा आप डेफिनेशन लिख लो। बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, कि किस तरीके से उसको हम लोग क्लासिफाई करें, कौन कौन से उनको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? इज कॉल्ड, क्या बोलते बताओ? यस, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलेंगे। गुड। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताओ? नो सर। हाँ,
टैक्सोनॉमी के अंदर जब जाएंगे हम लोग, यहाँ पर नहीं, वो आगे चल के आपको मालूम चलेगा 11th में, कि इसकी भी फर्दर ब्रांचेज हैं कि टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल्स, तो कीमोटैक्सोनॉमी हो गया, बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो बोलेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर है? तो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या टैक्सोनॉमी। क्लियर है? हाँ सर। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेन्स है, उसका हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा। क्या करा? आइडेंटिफाई। तो इसमें आइडेंटिफाई में हम लोग क्या करेंगे उसको, आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस, इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन? यस यस सर। हाँ, तो आई थिंक मैंने पहले एक पॉइंट लिखा था आपको शुरू में। हाँ, तो इतना स्पेसिस आपके पास नॉन है और डिस्क्राइब है, टोटल इतना एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? ये थोड़ा डाटा अच्छा है। और ये वाला क्वेश्चन ना नीट में पूछा गया था, कितना नीट के एग्जाम होता है ना मेडिकल का। हाँ, तो कौन सा ये सवाल क्वेश्चन? पूछा ये वाला। हाँ ओके सर। ऑप्शन में ये आंसर था, ऑप्शन था, इसका आंसर यही हुआ। उसको पूछा था कि कितना स्पेसिस नॉन है और डिस्क्राइब है। क्लियर है? हाँ तो मैंने क्या बोला कि आपके पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ना। तो पहले हम लोग इन सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? विल यू एक्सप्लेन या आई विल एक्सप्लेन इट? आइडेंटिफिकेशन बोलिए। is a process in which we identify unknown organ or which we study about unknown organism. मतलब जो आपके पास नॉन ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के बारे में नॉन है, तो कोई ह्यूमंस का कोई अलग स्पेस मिल जाए या कुछ ऐसा ही मिले, या कोई एनिमल्स की बात करें या कोई प्लांट्स की बात करें, तो अगर सेम चीज अगर आइडेंटिफाई किया हुआ है तो हम उसका सेम चीज का दोबारा हम लोग टैक्सोनॉमी नहीं करेंगे। जो अब तक डिस्क्राइब नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना? सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, the process by which an organism is recognized from other already non organisms। कोई दिक्कत है बताओ? एंड उसको एक किसी पार्टिकुलर ग्रुप में हम लोग असाइन करेंगे। जैसे मान लो कोई ग्रुप का नाम मैंने ए रख दिया, जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल, जैसे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल। अब हमने आपकी क्लास को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो मैंने रखा क्या कि 40s, एक ग्रुप 40s वाला नहीं, मार्क्स के बेसिस पे रखते हैं ना। एक मैंने रखा 90s वाला, ठीक है। दूसरा मैं रखा कितना, 80s वाला। सर ये मतलब ये क्या ग्रुप्स है ना? हाँ ये ग्रुप है। एक ग्रुप मान लो ग्रुप ए नाम रखा, ग्रुप बी नाम रखा, मार्क्स के बेसिस पे कि जिनका मार्क्स 90 से ऊपर है, जिनका मार्क्स 80 to 90 के बीच में है, और जिनका मार्क्स 75 प्लस है, ये ग्रुप बी हो गया, ये ग्रुप सी हो गया। एंड एट लास्ट जिनका मार्क्स 60 प्लस है। क्लियर है? तो हमने ये 4 ग्रुप में लिया। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 90 प्लस लाए होंगे, ये सब नो, कुछ 80 प्लस लाए होंगे, कुछ 75 प्लस, कुछ 60 प्लस। तो इस तरीके से मार्क्स के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स वी हैव असाइंड टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप जिसमें वो बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया वी हैव सेट। यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स के लिए वी हैव सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, उनको फॉलो करते हुए इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में हम असाइन करते हैं। क्लियर है? यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अरे समझ में आई कि नहीं बोलो? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? एंड असाइन टू अ particular
और उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिक ग्रुप। क्लियर? क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक ग्रुप या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हाँ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। कोई दिक्कत? नो सर। अगला है नोमेनक्लेचर। विल यू एक्सप्लेन दिस टर्म? नहीं पता है इसका मतलब। नाम से वर्ड्स में जाओ, वर्ड पे जाओ और इसका जांच पड़ताल करो क्या है। मतलब जब हमें कोई चीज नहीं आती ना, फिर उनके वर्ड्स का टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, हाँ, फिर समझने की करते हैं। यहाँ पर है नोमेनक्लेचर। ठीक है? बेसिकली नोमेनक्लेचर कहाँ से है? नेमिंग से आया। जब हम कोई भी ऑर्गेन को आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, कुछ प्लांट ऐसे हैं। अच्छा, आपने एंड्रोशियम का नाम सुना है? इसका एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हाँ सर, एंड्रोशियम जेनोशियम, हाँ सुना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है फ्लावर्स का। हाँ हाँ एंड्रोशियम मेल है, गाइनोशियम फीमेल है। हाँ क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने देखा, मैंने स्टडी किया, मेरे रिसर्च के हिसाब से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके 5 एंड्रोशियम हैं और सारे के सारे चिपके हुए हैं। ठीक है? तो एक एक कैटेगरी में ये कर लिया मैंने। दूसरा दूसरा कुछ प्लांट मैंने देखा, उसका जो एंड्रोशियम है उसमें वो 2-3 है, लेकिन दोनों तीनों अलग अलग है। 3 है, तीनों अलग अलग है। तो हम इन दोनों प्लांट को एक ग्रुप में तो रख नहीं सकते ना। क्लियर है? जैसे आपने रूट्स के बारे में पढ़ा होगा कि अलग अलग रूट होते हैं। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा। रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पढ़ा है? हाँ सर। फाइब्रस रूट्स के बारे में। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास फाइब्रस रूट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास एडवेंटिशियस रूट होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास टैप रूट सिस्टम होता है। अब तीनों को एक कैटेगरी में तो रख नहीं सकते ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी विल असाइन दिस प्लांट इनटू सर्टेन ग्रुप। उसका ग्रुप का नाम एक्स वाई कुछ मैंने रख दिया। तो इसी हिसाब से हम उनको पहचानेंगे कुछ क्राइटेरिया को देखते हुए, चाहे वो फ्लावर होगा या उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा या सेल के टाइप होगा या रूट के बारे में होगा या फ्रूट के बारे में होगा या वेज की, जो कुछ भी क्राइटेरिया होगा हम लोग सेट करेंगे और सेट करके उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब जैसे मान लो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें से कुछ क्या है? ह्यूमंस है। तो वहां से हम उसको पहचान लेंगे। अरे मतलब पहचानेंगे, उसका कुछ ना कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा। गोलू, मोलू, सोलू, टोलू, कुछ भी, टोनू, मोनू, कुछ भी नाम रखेंगे। नाम रखने के बाद हम क्या करेंगे? अब किस पढ़ने वाले बच्चों में है या काम करने वाले बच्चों में है, उस हिसाब से हम लोग असाइन करेंगे। क्लियर है? तो नॉमेनक्लेचर मतलब क्या है? सिंपली नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अरे ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी नाम रख देंगे। इसको नेमिंग करने के लिए वी हैव सर्टेन रूल्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, ध्यान रहे। और नेमिंग ये सारा रूल ऐसा हो जो वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड हो। व्हाट इज इट? वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड हो, मतलब पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मराठे हैं तो प्याज को हमने कांदा बोल दिया, आलू को हमने बटाटा बोल दिया, नहीं चलेगा। ये लोकल के लिए ठीक है, जरा लोकल नेम, बट ऐसा नाम। अच्छा, हम लोग इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो नोमेनक्लेचर की जरूरत हमें जरूरत क्यों पड़ती है? आप कहीं पे कांदा बोलोगे तो लोग नहीं समझेगा, बटाटा बोलोगे नहीं समझेगा, अनलेस एंड अनटिल वो उस जगह में रहा ना हो या उनके बारे में कोई जानकारी ना हो उसको। लेकिन आप उसका अगर बायोलॉजिकल नेम बोलोगे, किसी ना किसी तरीके से मालूम चल जाएगा कि हाँ मैं आलू के बारे में कह रहा हूँ, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, जरा से भी उनको जानकारी होगी तो। मतलब दिस आर द इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल्स जिनके तहत फॉलो करेंगे तो हमें किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हमें किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में, जानने में परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? हाँ सर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, साइंटिफिक रूल्स।
is called, क्या बोलेंगे बताओ? nomenclature. कोई दिक्कत? No sir. अगला है क्लासिफिकेशन। अगला क्या है? क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छी बात है, क्लासिफिकेशन है। अब जब नेमिंग कर लिया, अब नेमिंग करने के बाद हम उसके सर्टेन ग्रुप ऑफ जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसमें उसको असाइन करेंगे। ये सर नो, उसको असाइन करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? सो इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म, ध्यान रहे एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड, मतलब उस ग्रुप में हम लोग उसको असाइन करेंगे, ठीक है? इनटू कन्वीनियंट, मतलब उसके रेस्पेक्टिव। ऐसा नहीं कि एनिमल का ग्रुप का आदमी है तो एनिमल का ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट में डाल दिया, माइक्रोब्स वाला है तो प्लांट में डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। उसके कन्वीनियंट मतलब उसके सहूलियत के हिसाब से कि किस में ये आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा प्लांट्स है, अरे उसमें से कुछ वेज होगा, कुछ फ्रूट होगा, कुछ मेडिसिन होगा ना। क्लियर है? हाँ सर। कुछ ऐसे होंगे जो मल्टीपल यूज के लिए भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफाई करें ताकि हमारे पास कंफ्यूजन कम हो, क्लियरिटी ज्यादा हो। क्लियर है? हाँ सर। ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लियर है? हाँ सर। कन्वीनियंट कैटेगरी। कोई दिक्कत? नो सर। ऑन द बेसिस ऑफ कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल, ताकि हम ऐसा भी ना हो कि हमें प्लांट के अंदर कार्डपीट के अंदर जाके झांकना पड़ रहा है। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हमें इजीली मालूम चल जाए, इजीली ऑब्जर्व कर सके हम, तो ऐसे कैरेक्टर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर है इनके डिटेल से आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? क्लास 11 में। कोई दिक्कत? सम इजीली ऑब्जर्वेबल characters is called classification. कोई दिक्कत? नो सर।